जय हिंद दोस्तों। मैं हृदय जैन आपका हृदय जैन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इररेशनल होते हैं? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रूट टू, रूट टू, रूट टू, yes, it's an irrational number. Now we will see root 3. Root 3, yes, it is also an irrational number. Now we will see root 4. Root 4 is the square root for 2. Okay, so we will see here it is not an irrational number. Okay, root 4, that is 2. It can be shown in the form of p by q. इसको आप p by q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, तो यहां पे आपको एग्जाम्पल भी मिल गया कि क्यों सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इररेशनल नहीं होता। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमको रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं विच इज O। ओके, दिस पॉइंट इज एट ओरिजिन। देन वी मार्क अ पॉइंट A which is 1 centimeter apart from origin. Okay, then we will draw a perpendicular BA on point A which is also of 1 centimeter. Okay, then friends, I will join OB. Here we can see that we are forming a triangle in triangle OAB by Pythagoras theorem. ठीक है, because it's a right angle, so there will be Pythagoras theorem applied. Okay, so OB square is equal to OA square plus AB square. ठीक है, we can see here that is hypotenuse, that is base of the triangle, perpendicular height of the triangle. So by Pythagoras theorem we can write hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So OB square is equal to OA square plus AB square. Now we can write here OA is equal to 1 whole square plus AB is equal to also 1 square, that is 1 plus 1 2. OB square is equal to 2. So we can also write OB is equal to root 2. Okay, from here we can say that OB is equal to root 2. Now here you can see that if we draw an arc of length OB, हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ OB के इक्वल है। हम यहाँ पे यहां से इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किए जिसकी जो लेंथ है वो OB के इक्वल है। सपोज दिस पॉइंट इज E. ओके, सो हियर वी कैन राइट OE is equal to OB which is equal to root 2. ओके, तो यहां पे क्या हुआ, हमने रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। Now we will see next example. Locate root 3 on the number line. Okay, here we will see how to locate root 3 on the number line. Let point O is marked on the number line and point A is marked on the number line. Okay, we will draw a perpendicular BA
on point A, which is also of 1 centimeter. Okay, we have drawn OA of 1 centimeter and AB of 1 centimeter. Okay, now we will join point O and B. In the last portion itself, we have seen OB is equal to root 2. Okay, now we will draw a perpendicular or on point B. Suppose that is BC. Okay, now we will join point C to point O. In triangle OCB, OC square is equal to OB square plus BC square by Pythagoras theorem. Okay, we will apply Pythagoras theorem on triangle OCB. Okay, so OC square will be equal to OB square plus BC square. Now OB square, that is square of root 2 plus 1 square. Okay, after solving we will get 2 plus 1, that is 3. OC square will be equal to 3 and OC will be equal to root over 3. Okay, from the figure we will see, if we draw an arc, यदि हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे which is OC in length, and suppose this point is point D. Okay, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, OD is equal to OC which is equal to root 3. तो इस तरह से आपका जो root 3 है वो नंबर लाइन पे लोकेट हो जाएगा. दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लोकेट root 5 ऑन द नंबर लाइन. अभी हमको root 5 लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. एक पॉइंट मैंने लिया, दैट इज पॉइंट O. आफ्टर 2 सेंटीमीटर मैं एक पॉइंट लूंगा, दैट इज पॉइंट A. ओके, फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BA ऑन पॉइंट A. ठीक है, फिर मैं O से B को मिला दूंगा. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी विल सी OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है. हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल. ये परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट इज हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल. ओके, सो ऑलवेज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा. फिर हम लोग आगे देखते हैं OB स्क्वायर विच इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. हियर OA इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 5. ओके, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5, then OB will be equal to root over 5. यहां से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे. फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट C है, तो हम यहां पे देखेंगे कि पॉइंट OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रूट 5. इस तरह से हमारा रूट 5 भी नंबर लाइन पे लोकेट हो गया. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिया, लोकेट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. दोस्तों सबसे पहले जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 9.3, तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेंगे A और B, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.3 है. ठीक है, अब क्या करेंगे, B से एक पॉइंट ले लेंगे C विच इज 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम B. हम देखेंगे B और C का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है. अब यहां से हम देखते हैं ये जो पॉइंट है A, ये इस पॉइंट C से 10.3 सेंटीमीटर दूर है.
ए और सी का मिड पॉइंट है सपोज ओ, ये मैंने ले लिया मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। अभी हम यहां पे देखेंगे AO को रेडियस बना के, AO which is 9.3 plus 1 that is 10.3 divided by 2, तो ये आपका 10.3 divided by 2 है AO। इसको हम लोग एक रेडियस बना के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, हमने एक अर्धवृत्त सेमी सर्कल ड्रॉ किया। वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DB ऑन पॉइंट B, ठीक है। फिर हम लोग पॉइंट O और D को मिला देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट OD है, पॉइंट OD ये पॉइंट OA के इक्वल होगा, जो कि 10.3/2 होगा, ठीक है। फिर हम कंस्ट्रक्शन से देखेंगे, बिकॉज OC इज इक्वल टू 10.3/2, BC is equal to 1 centimeter, so OB will be equal to 10.3/2 minus 1 centimeter, that is 10.3, LCM लेंगे 2, that is 2, ये हो गया 8.3/2, okay। So in triangle OBD, by Pythagoras theorem, we will see OD square is equal to OB square plus BD square, OB square plus BD square। यहां हम देखेंगे दोस्तों, BD square will be equal to OD square minus OB square। What is the value of OD? OD is 10.3/2 square minus 8.3/2 square। हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिकॉज A square minus B square is equal to A plus B into A minus B। यहां पे हम लोग देखते हैं, बिकॉज A square minus B square is equal to A plus B into A minus B। तो यहां पे क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 10.3 plus 8.3 divided by 2 and 10.3 minus 8.3 divided by 2। यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18.6 divided by 2 and 10.3 minus 8.3 that is 2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे बचेगा 9.3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, BD square is equal to 9.3, BD is equal to √9.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट BD से BD लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा BE। अब हम यहां पे देखेंगे, ये जो BD है ये BE के इक्वल हो गया, ठीक है। BE के इक्वल हो गया। अब ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू √9.3 विच इज लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने ये जो है इसको लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे, √9.3 को, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।